ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਆਲਸ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਅੰਗ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾਥ ਟਿੰਡੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ। ਇਉਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇਉਂ ਬੀਤ ਗਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਲਹਿਰੀ ਤੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਨ ਰੱਤਾ ਅੰਗ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਗਿਆ ਪੰਥ ਕਰਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਪਰ ਲਹਿਰੀ ਜੋਬਨ ਦੇ। ਪਰ ਜੋਬਨ ਲਹਿਰਾਂ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਆਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਤੇਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਹੈ।
सोच ही नहीं कदे पाया। एक गुरु तेग बहादुर साहब जी का ही पावन वचन है, प्राणी नारायण सुध ले, छिन छिन औद घटै नहीं बूझै, बिरथा जात है ए, तरन आपो विखियन स्यो खोयो, बालपन अज्ञाना, बिरध भयो। आखिरी अवस्था आ गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी समझ नहीं पाया। शिव जी आखते ने, कहते तरना पो विखियन स्यो खोयो, ਜਿਹੜੀ जवानी ਵਿੱਚ कुछ करन ਦਾ वक्त सी, मालिक ਦੇ चरणों ਵਿੱਚ जुड़न ਦਾ वक्त सी, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਲਈ। शेख फरीद का भी ख्याल करे बचन, जो तो खट्टन बेल ता तू रत्ता दुनी स्यों, मर्ग सवाई नी जा भरिया तड़दिया। जदों तेरे खट्टन का वक्त सी, उदों तू अज्ञानता विच चला गया, नहीं समझ पाया जवानी की गल नूं। हजूर के बचन में बार बार तुहाडे ख्याल विच रखना है। मेरे मालिक जी आखते ने, कहंदे धन जोबन का गर्भ न कीजै, कागज ज्यों गल जाएगा। कागज ते पानी दियां दो बूंदां डिग पैण, कहंदे जो उहदा हाल हुंदा है, बंदिया ये हाल तेरा होना मता किते हंकार विच भुलिया न समय। गुरुदेव ने बड़े प्यारे बचन बख्शिश कीते ने, समझाते ने। सतगुरु कहन लगे, जोबन धन प्रभता के मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात मस्तिया रहिंदा। ये प्रगट करना चाहता जवानी के जोश विच भी, मैं दुनिया नूं दस दियां मैं कुछ हाँ। जो बुढ़ापे च कदम रखता वो तो सारिया गल्लां बदल जांदियां ने आपे। जवानी च तुसीं नित दिहाड़े देखो, हर गल का जोर इसे गल ते है, मैं दुनिया का ध्यान खिंच के ये प्रगट कर सकां भी धरती ते मैं भी रहना। सब कहते 4 दिनों की गल सी। सियाने बंदे इस जवानी के जोश नूं, जिवें सियाना बंदा वो पानी नूं किसी तरह बन मार के दुनिया के बर्तन जोगा बना देंदे है ना। सच करके जानियो, जवानी नूं भी गुरु किते मालिक मेहर कर देवे ते उस जवानी नूं भी साकार भले दे लई, संसार दे चंगे कामां लई ला देंदा है। वो जवानी आप भी नहीं उजड़दी ते लोकां नूं भी नहीं उजाड़दी। याद रखियो, मैं बेनती करा, सब तो मनुख अपने जीवन की चादर ते दाग जिहड़े ने वो जवानी पैरे चला लैंदा। साहब आखते ने, कहंदे भलिया मैं समझाउणा चाहुंदा, अंत नूं पछतावे तो पहले चंगा है किते हुण तेरे कोल वक्त है, उसनूं संभाल लवें, उसनूं संभाल लवें। और गुरु घर दे विच सब तो वधीक गल जिहड़ी वो जवानी दी होई है, हैरानी दी गल है। सब तो वधीक गल जवानी की हुई। दस कई बारी बेनती करदा है, गुरु नानक साहब जी ने तो 3 अवस्थावां हंडाइयां ने। उन्हें बचपन भी हंडाया है, उन्हें जवानी भी हंडाई है, तो उन्हें बुढ़ापा भी हंडाया है। पर गुरु नानक साहब की जवानी सानू दसदी है संसार के भले के काम किवें करने ने। जवानी पहरे विच ही सतगुरु ने सच्चा सौदा कीता सी। जवानी पहरे विच ही गुरुदेव सच्चे पातशाह ने दुनिया के अंदर व्यापार करने की जाच सिखाई सी। जवानी पहरे विच ही लोग मैं कहंदे ने। जवानी पहरे च गुरु नानक साहब ने तू कहना सिखाया सी। पढ़े हो कदे इतिहास सुल्तानपुर लोधी का? 32 सालों की उम्र है हजूर सच्चे पातशाह की। जदों उदों बैठ के मैं ते मेरे दी भुला के गल नूं तू ते तेरे दी विचार मनुख की झोली विच पाई सी। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह की तो उम्र ही 28 सालों की है जदों गुरु चरणों च आए ने। 1504 में जन्म होंदा है तो याद रखिए जो 1532 विचों गुरु चरणों में आ गए ने। 28 साल की उम्र है। 28 साल की भर जवानी की उम्र गुरु नानक साहब के दर ते सेवा कमा रहे हैं। लोग भी ताने कस रहे ने। माता खीवी नूं कई तरह दी गल्लां बोल रहे ने,
पर जवानी किहो जी होवेगी जिहदे उत्ते कोई लोकां दा किसी किस्म का कोई असर नहीं। गुरु के चरणों ते मत्था टेक दिता ते गुरु के लिए सदा की सांझ पा ली। गुरु अमरदास जी बुढ़ापे वेले गुरु चरणों में आए ने, पर गुरु रामदास जी जवानी भी सानू बहुत कुछ सिखाती है। पर जवानी मनुख अपने बदन नूं मिट्टी की किणका नहीं लगन देंदा। गुरु रामदास का जीवन वेखिए, मिट्टी नाल लिपड़े पे सन जिस दिन बीबी भानी का रिश्ता गुरु अमरदास जी ने किया सी। कितनी वधिया जवानी होवेगी जिन्हों गुरु ने कहा सी भी लड़का किहो जिहा होवे, कहंदे इहो जिहा होवे, कहंदे इहो जिहा ते फिर यही हो सकता है। लोकी चढ़दी जवानी विच विकारां दे दाग ला लैंदे ने। बाबे जेठे ने चढ़दी जवानी च गुरु के प्यार का दाग ला लिया सी। गुरु के प्यार दीयां निशानियां अपने जीवन विच प्रगट कर लईआं सन। गुरु अर्जन पातशाह जी 18 साल की उम्र है उन्होंने। 1563 विच प्रकाश होंदा है। याद रखिए 1581 नूं गुरगद्दी मिलती है। जिस दिन गुरगद्दी से विराजे उस दिन 18 साल की उम्र है। तो जदों भट्ट गुरु चरणों में आए सन, वो सारे भट्ट बहुत थावां ते देख के आए सन, बहुत थावां ते देख के आए सन। उन्होंने अपने अमृत बोल ने, रहो संत हों टोल साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपस्सीए मुखों के पंडित मिठे, वर्ष एक हों फिरियो किने न परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी न आयो। जदों गुरु अर्जन पातशाह के घर आए, हजे लहरी लहरी जी दाढ़ी चेहरे ते आ रही है। हजूर दे 18 साल की उम्र च किन्नी क दाढ़ी होती है, तुसीं समझदे हो। जदों तख्त ते बैठे गुरु अर्जन पातशाह नूं भर जवानी च देखिया, मत्था टेक दिता। कह लगे भट्टा नूं पुछिए तुहाडी तसल्ली इत्थे आके होगी? कहंदे आए तो गुरु देखण सां, पर इत्थे असीं गुरु भी देख लिया ते इत्थे असीं रब भी वेख लिया। इत्थे असीं रब भी वेख लिया। धरन गगन नभ खंड में जोत स्वरूपी रहो भर, भन मथरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर। 18 साल की उम्र वो कितनी तसल्ली करवा रही है दूजिया की। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह 1595 विच प्रकाश होंदा है। 1606 विच गुरगद्दी मिल गई। 11 साल की उम्र है। 11 साल की उम्र आ सी साडी जिंदगी। गुरु ने दस्सिया सी भी जवानी किहो जी होवे। गुरु हरराय साहब जी 1630 विच प्रकाश होंदा है। 1661 विचों ज्योति जोत में समा जाते हैं। सारी उम्र ही सिर्फ 31 साल है। सिर्फ 31 साल, समुची उम्र ही 31 साल है। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह वो 5.5 साल के तख्त से विराजते हैं। 7.25 साल के शरीरक जामा त्याग जाते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब की जवानी किहो जी होवेगी? साडा विरसा कितना महान सी। जिस दिन गुरगद्दी मिली, गुरु हरराय साहब जी को मत्था टेक के अपने बापू के चरणों च पूछया, पिता जी मेरे लिए की हुक्म है? कहंदे पुत बकाले चला जा, तेरी लोड़ है उत्थे। क्योंकि दरबार साहब भी पृथ्वी चंद की औलाद ने मल्लिया है। खडूर साहब गुरु अंगद साहब के पुत्रा मल्लिया है। करतारपुर साहब गुरु नानक साहब के पुत्रा मल्लिया है। ते नाल गोइंदवाल साहब गुरु अमरदास जी के पुत्रा मल्लिया है। सारिया थावां ते गुरमति की गल चलण की बजाय कुटुंब की परिवार की परवरी कर रहे हैं। गुरमति की गल नहीं करते। गुरु पुत्रां का जवाब देने वास्ते गुरु पुत्र नूं ही जाना पैना है। तू बाबे बकाले चला जा, बकाले चला जा। गुरु तेग बहादुर साहब की जवानी मत्था टेक के चले गए। 13 साल की उम्र च सी जिस दिन पिता ने सीने नाल आके एक गल कही सी। कह लगे तेरा ना त्याग मन नहीं, अज तेनू तेग बहाउंदियां देख के मेरा जी करदा है मैं तेरा नाम तेग बहादुर रख दिया।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੋ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਨਾ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਲ ਹਾਰ ਗਈ, ਇਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਸਲ ਹੈ? ਵਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਪ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਬਈ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨਾਪੋ ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿਓ। ਤਰਨਾਪੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਵਾਨੀ। ਇਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
बुढ़ापा तो आप किसी के सहारे हो जाता है। इन्हें की सेवा कर लगिया, कदे गोडे साथ नहीं देंदे, कदे अखां साथ नहीं देंदियां, कदे जुबान साथ नहीं देंदी। आई ने 4 दिन बंदे आ। हजूर ने इसलिए बचन आख्या, धन जोबन अर फुलड़ा नाठी वाले दिन 4। जोबन जवानी का नाम, धन जोबन अर फुलड़ा नाठी वाले दिन 4। पबन केरे पत जो ढल ढुल जुम्मन हार, रंग मान ले प्यारिया जा जोबन ना हुला, जिन थोड़े थके पाया पुराना चोला। चोला पुराना हो जाना है। तरना पो यूं ही गयो, गोआ बैठा है। जेड़ा समा एक बारी लंघ गया, उन्होंने किसी भी कीमत ते मोड़ नहीं सकेगा। अरे वो वास्ते कच समय ने एक न मनी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कनी। त्रिखे अपने वेग गया टप मन्ने बनी, किवें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी। जेड़ी मैं अटक पाई वो भन के तुर गया। वो संभल संभाल इस समय नूं कर सफल उड़ंदा जामदा, ये ठहरन जाच ना जानदा, लंघ गया न मुड़ के आउंदा। जिन्नी भी बची है ना, उन्नी तो चंगे पासे ला दिए, उन्नी तो चंगे पासे ला दिए। तरनापो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। जरा बुढ़ापे नूं कहंदे ने। जरा जीवन जोबन गया, किछ किया न नीका, ये जियारा निर्मोल को कौडी लग मीका। बुढ़ापे का बहुत थमां से जिक्र आएगा गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकां च। शिव जी आख रहे ने, कहने लगे लियो जरा तन जीत। जीत शब्द बड़ा विचारन वाला है। जीत मतलब जित्तिया। जित्तिया कित्थे जांदा? जिथे लड़ाई होवे। तुसीं कदे विचार के देखियो, बंदा बचपन विचों जवानी च नूं जा रहा, लड़दा नहीं है भी मैं जवानी आउण नहीं देनी, बल्कि खुशी नाल जी आया कहंदे जवानी नूं। पर जदों जवानी चों बुढ़ापे वल नूं तुरदा, बड़ा ही लड़दा है, बड़ा ही लड़दा है। हर गल गल ते लड़दा है। लोकां नूं प्रगट करना चाहुंदा मैं अजे जवान ही है। बड़ा लड़ाई करदा है, बुढ़ापे नाल बहुत लड़ाई करदा है। नहीं प्रमाण करना चाहुंदा, किसी भी गल तो प्रमाण नहीं करना चाहता भी मेरे ते बुढ़ापा आ गया, कबूल नहीं करता। लियो जरा तन जीत। बुढ़ापा कहना मैं जित के लिया है। यो ही कारण है। देखो बचपन ने जवानी जित के नहीं ली, वो छड़ के चला गया, बचपन चला गया। जवानी ने अगे बुढ़ापे नाल लड़ाई की, जवानी हार गई तो बुढ़ापा जित गया। हुण जिहड़ी चीज़ जित्ती हुई है, जित्ती हुई चीज़ थोड़ा छड्ड के जाएगा। यो ही कारण है। बुढ़ापा कहना मैं इन्ना औखा जित्तिया तो हुण मैं तेन छड्ड के थोड़ा जावांगा, लैके जावांगा। बुढ़ापा लैके जांदा, बचपन आउंदा चला जांदा है, जवानी आउंदी चले जांदी है, बुढ़ापा जांदा नहीं, लैके जांदा है। लियो जरा तन जीत। जिते है कहना मैं तेरे को तू किथे होण दिंदा सी मैनू नेड़े। बड़े उपराले करदा मनुख, बहुत वसीले बनाउंदा भी मैं बुढ़ापे नूं अपने उत्ते काबज नहीं होण देना, पर वो जित लैंदा है। कहो नानक भज हर मन, औध जात है बीत। इस पंक्ति का अर्थ आपां बहुता विस्तार नाल नहीं करना, क्योंकि इहदे इस पंक्ति के विचारां नाल रलदियां विचारां अगलेरे कई श्लोकां च आउणीआं ने। इत्थे आपां संखेप ही बेनती करने। कहो नानक भज हर मन। ओ मन हाले भी रब नूं चेते कर लै। एक गल बड़ी तवज्जो दे के सुने। जितने भी मनुख ने जवानी पहरे च नादानियां कीतियां, उन्हां दियां कहानियां बुढ़ापे च सुणाउंदा। फिर तुसीं किसी बुढ़े कोल बैठ के वेख लेना, किसी बजुर्ग कोल बैठ के देख लेना,
अपनी जदों भी किते गल छेड़ेगा जवानी दी छेड़ेगा। पुत्रा मैं इन्ना देसी घ्यो पी जांदा सी, पुत्रा मैं एवें कर लैंदा सी, पुत्रा मैं एवें कर लैंदा सी। कदे पैसे दियां गल्लां, कदे कमाई दियां गल्लां, कदे जोश जवानी दियां गल्लां, सारी दी सारी लिस्ट बनाई रखदा। सब कहंदे हुण तां रब दी गल कर लैंदा, बुढ़ापा आ गया सी हुण ते कर लैंदा, हुण भी जवानी दियां लई बैठा। चले गई पर उहदियां गल्लां नहीं गईयां। जवानी चले गई, जिउ बुढ़ापे च रहा है पर गल्लां जवानी दियां करदा है। सियाणा बंदा वो है प्यारिओ जिहड़ा अपने जीवन के पड़ाव नूं समझदा है भी मैं हुण किस पड़ाव ते है। जे बुढ़ापे दे पड़ाव ते है, बुढ़ापा इहो जिहा बना लोग तेरे बुढ़ापे नूं भी नमस्कार करन। वेखी किते तुरकार ना नहीं, बुढ़ापे दे विच लगे दाग बड़े खतरनाक हो जाते हैं। बुढ़ापे नूं बहुत संभल के वरत, बहुत संभल के वरत। हजूर ने बड़ी प्यारी दात सानूं बख्शिश की है। मालिक जी जिंदगी के विरसे दीयां गल्लां, जिंदगी के विरसे नूं संभालण दी बात पाउंदे ने। तरन आपो इउं ही गयो, लियो जरा तन जीत, कौन नानक भज हर मना। औद औद मतलब उम्र जात जा रही है, बीत वो उम्र बतीत होती जा रही है। गुरु तेग बहादुर साहब जी का ही एक वचन कह के आप समाप्ति करिए। बड़ी तवज्जो देकर समझो, मेरी बेनती है। बीत जह है, बीत जह है जन्म अकाजरे, निस दिन सुन के पुराण। धार्मिक ग्रंथां नूं सुनदा है, बुढ़ापे बड़े आप सुन नहीं लग पैने हैं। सुनदा है निस दिन सुन के पुराण, समझत नहीं रे अजान। काल तो पहुँच्यो आन, कहाँ जह पाजरे। अस्थिर जो मान्यो दे, छोटो तेरो होए है खे। क्यों ना हर को नाम ले, मूर्ख निराज रे। छाट देते मन को मान, राम भगत हिए आन। हंकार छड्ड दे, हुण तां छड्ड दे, भांडा खाली कर ले, शायद गुरु गुणी पा देवे। नानक जन यह बखान, जग में बराज रे। दुनिया विच कोई ना कोई ना छड्ड के चला जाएगा, इस नूं संभालना है। आओ प्यारिओ कोशिश करिए बच्चियां नूं गुरु दे विरसे दी जवानी दी तस्वीर दिखाइए, गुरमत दी तस्वीर दिखाइए। बच्चियां नूं जवानी किहो जी हुंदी है। ते मैनूं पूर्ण आस है साडी धीआं बच्चे इस गल तो प्रभावित होके वधिया इहो जी जवानी गुजारनगे जिन्हां ते मापियां नूं, देश नूं, गुरु नूं, सब नूं माण होएगा। भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।